Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Suraj School. Okay, student, it is a revision time. We will revise April and May month syllabus. So we will start with the chapter number 1 of biology, that is life processes. So what is life processes? The basic functions performed by living organism. कुछ फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ऑन दिस अर्थ पे, फॉर सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अलाइव रहने के लिए जो कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, इसको लाइफ प्रोसेसेस. Okay, students, it is very very difficult to distinguish a living organism from a non-living object. It is equally difficult, to give a proper definition of life. Like if we see a frog jumping or a monkey eating fruits, children playing in the park, we know that these are living beings, right? We come to know this on the basis of some assumptions on our mind, जो हमने सोच रखा है कि हाँ ये लिविंग बींग्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वी कैन easily say that it is a living being, right? We have certain criteria to assign an object as living or as a non-living. Like these criteria are in fact the characteristics features of living being, जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये living है और ये non-living है. Okay, like if we know that plants do not jump, plant jump नहीं करते हैं, they do not eat fruits, they do not shout, play in park, but still they are living beings because they possess the characteristics features of living organism. If I'm taking one another example like virus, okay, on the other hand, do not show any characteristics features of living beings when remain outside the host. अगर किसी होस्ट से, बॉडी से अगर वो बाहर है तो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है. दे आर देयर फॉर रिगार्डेड एज नॉन लिविंग पार्टिकल्स. तो हम क्या कह देते हैं उन्हें? नॉन लिविंग. द सेम नॉन लिविंग पार्टिकल्स ऑफ वायरस बिकम एक्टिव and start their molecular movement and other features of living organisms when they reach inside the host cell. किसी भी host cell में चले जाते हैं तो वो अपने living being के characteristics को show करते हैं. When it is outside the host body, it is known as non-living. When it come in a host cell, it is known as a living being. Okay, living organism. It is because of this dual nature they are considered as a कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. इसीलिए उनको कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का. देर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर वायरस आर अलाइव और नॉट. सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स we can say living things are complex organization of molecules which perform certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc. They are okay. So the seven main life process common in all living organisms, जिसमें हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन होती है. Okay, one thing that we know, all living organisms perform some basic functions or processes in order to remain alive. These processes are needed to maintain of their bodies catching off to their daily activities. के लिए उनको ये process continue करनी होती है. Even some of these process continue to occur even when the organism are not doing any activity. अगर वो कुछ नहीं कर रहा होता तो भी वो processes continue चलती रहती है, चाहे उस टाइम पे when we are just sitting or sleeping, but वो process है वो continue रहती है. Okay, so all the processes which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life process. हम उसे life process कहते हैं. The first life process are nutrition. So very important. It is a process by which organisms obtain and utilize the nutrient
न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर, न्यूट्रिशन है क्या एक्चुअली? इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द बॉडी. These nutrients are the source of energy which come from outside the body of the individual organism, since the life on earth depend on many carbon based molecule. Like अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, ओके, एंड in which the green plants synthesize carbohydrate with the help of carbon dioxide, sunlight, and animal nutrition involve taking of food inside the uh, outside the body, right? See, nutrition means intake of food and utilization by the body. Plant में that is autotrophic and animals में heterotrophic. Okay. And respiration, the second most important is respiration. It is a process that involves breakdown of nutrients through the oxidation and release of energy for the cellular needs. For this, many organisms take oxygen from the outside of the body. Respiration means क्या है? Intake of oxygen, जो कि हमने फूड इंटेक किया है, लाइक इट्स अ ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी और हमें जो प्रोवाइड करेगी H2O, एनर्जी प्लस CO2. दिस इज़ द रेस्पिरेशन. जो हमें न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं, फूड इंटेक किया है, उसका ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में, उसका ब्रेक डाउन करने में रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस. नाउ ट्रांसपोर्ट. Transport means movement of molecule from one place to another place with the help of any medium, right? यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने वाले को क्या कहेंगे हम? ट्रांसपोर्ट करना एक मटेरियल को. लाइक इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द गेटिंग न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वाटर, रिमूवल ऑफ वेस्ट are needed because the entire body surface of such organism remain in contact with environment. उनकी बॉडी सरफेस ही ये सारे काम करती है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, ओके. बट हाउ इन केस ऑफ multicellular organisms like humans and higher plants, simple diffusion is not sufficient to meet the oxygen and nutritional requirement of all the cells. सिंपल डिफ्यूज़न होना, क्योंकि अमीबा में क्या डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रही है स्किन सरफेस के थ्रू, लेकिन ह्यूमन और प्लांट्स की बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स है और लार्ज है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस इज़ नॉट बी लाइक इट्स वेरी नॉट ईजी. डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या होता है? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मटीरियल को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचानी हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, CO2 बॉडी से बाहर रिमूव करनी हो, न्यूट्रिएंट पहुंचाने हो, तो ये सारा काम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. एक्सक्रीशन इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. क्योंकि अगर लाइक रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इसके लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. प्लांट्स में हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट होता है. ग्रोथ इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग. मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन इज लाइक इम्पोर्टेंट like features of a living beings, living organism, but it's not compulsory. like बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल टू डू रिप्रोडक्शन, बट दे आर स्टिल अलाइव. जिंदा रहने के लिए उन्हें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि जनरेशन की कॉन्टीन्यूटी के लिए, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आपके फीचर्स एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सब वो पास हो. जनरेशन की कॉन्टीन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है. ओके,
सो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट को लेना, लाइक कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, वाटर, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म. और बॉडी के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. फूड को इंटेक करना और बॉडी के थ्रू उनको यूटिलाइजेशन होना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप की होती है, दैट इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. Autotropic means autotropic nutrition is that mode of nutrition in which organism makes its own food from the simple organic material like carbon dioxide, water and sunlight, like plants are doing. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स. दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन. दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मीन्स for the nutrient, for the nutrition, they depend on other because they cannot make its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water. वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर इज it's a wrong statement. It's all the animals have a heterotropic, right? Not the autotropic. All the animals have a heterotropic mode of nutrition because they depend on others for the food. Some examples of heterotrophs देख सकते हैं आप. एनिमल्स वो कुछ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और कुछ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. मेनली दे डिपेंड ऑन अदर्स. फूड इज नॉट synthesized inside the body. Now types of heterotropic nutrition. heterotropic nutrition के कितने types है? We can see here is the 3 types of heterotropic nutrition. The very first is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition means in which organism obtain its food from decaying organic matter. यानी डेड और डिकेइंग मैटर से वो अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. दे आर कॉल्ड saprophytes. They depend on other. Like saprophytic nutrition refers to such kind of nutrition in which organisms derive their nutrients from the dead and decaying organic matter such as rotten leaves, rotten bread, dead animals, household waste, no living organic matter present in the soil. सभी से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल्स हम बात कर सकते हैं. मैनी फंगाई लाइक यीस्ट, मशरूम्स एंड बैक्टीरिया, दे डिपेंड ऑन dead and decaying material for their food. Parasitic nutrition, it is a different from saprophytic. saprophytic में डिपेंड कर रहे थे वो डेड और डिकेइंग मटीरियल पे, बट यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डराइव इट्स न्यूट्रिशन. अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं किसी अनादर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, कोई जिंदा बॉडी से, होस्ट सेल से वो अपना फूड इंटेक करते हैं. ओके. पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑफ अनादर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट. मतलब किसी भी होस्ट बॉडी से, किसी भी बॉडी के अंदर एंटर करके वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल्स आर हियर. लाइक आपने देखा होगा कि पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, लीवर फ्लूक. ओके. ये सभी किसी की बॉडी में कहीं पे इंटेस्टाइन में, लीवर में, गट में एंटर करके अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और सरवाइव करते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन. Holozoic nutrition is that nutrition in which organism takes complex organic food material into its body by the process of ingestion, and ingested food is digested and absorbed in the body cells of the organism. It's a very simple key like we are. Okay.
हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी में इंटैक्ट करते हैं और देन इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। देन सेल्स क्या करेंगी, उसको हमारी जो ब्लड है उस न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करेगी और सेल्स तक पहुंचाएगी। इट्स कॉल्ड होलोजोइक, यानी जैसे कि वियर हम लेते हैं फूड, बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। मेन थिंग इज हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, उसको च्यूइंग करा, देन हमारी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे जो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। देन उसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे, वो हमारी सेल्स के थ्रू यूटिलाइज होंगे। इट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स वी आर, all animals have the holozoic mode of nutrition. Okay students, it's a revision time, so I will give some questions for all of you to solve it, and if you have any kind of queries then ask to me. Thank you and have a nice day.